اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں سید نعمت اللہ محمد حسین چاگر کے ساتھ آپ لوگوں کی خدمت میں ایک مرتبہ پھر حاضر ہے. گزشتہ چند دنوں سے کچھ عرصے سے مسلسل بارشیں مونسون کی بارشیں ہو رہی ہے پاکستان کے مختلف علاقوں میں. جو کچے مکانات ہیں ان پہ آپ لوگوں نے دیکھا کہ سیلابوں کی وجہ سے ہمارے بند تھے ڈیمز تھے وہ سارے ٹوٹ گئے خستہ حالی کی وجہ سے. ایگزیکٹلی پری پلان ہمارے پاس کچھ ہوتا نہیں ہے. ہم لوگ حالات کے مطابق جتنا اپنی کمائی وغیرہ کر سکے وہ کرتے اور اپنے مفادات دیکھتے ہیں اجتماعی مفادات چھوڑ کے. تو بیسیکلی ہر انسان ظالم ہوتا ہے اپنی استطاعت اور اپنی طاقت کے مطابق. جو بندے کی طاقت ہوتی ہے اس کے مطابق وہ جو ظلم اپنے نیچے کے طبقوں کے ساتھ کر سکتا ہے وہ کرتا رہا ہے اور کرے گا ہی جب تک کوئی نظام کوئی ایسا قانون نہیں بنتا جس کے مطابق لوگوں کو عمل پیرا کرنے کی ایک قانون بنے. تو بیسیکلی آج ہم لوگ آئے ہوئے ادھر علمدار روڈ میزان چوک کے قریب گیس کے جو معاملات چل رہے ہیں. گیس کی بندش سیلابوں کی وجہ سے گیس کا پائپ لائن بہت ساری جگہوں سے ٹوٹ گیا ہے. تو گیس ٹوٹل بند ہے بلوچستان میں پچھلے 2-3 دن سے. تو جو ہم نے انفارمیشن اکٹھی کی ہے اس کے مطابق آئندہ 10 دن تک امکانات بہت مشکل ہے کہ گیس کی بحالی واپس ہو جائے کیونکہ راستے بالکل بند ہے. جو ہمارے اہلکار ہے سوئی ساؤدرن یا سوئی ناردرن گیس کے ان کا وہاں پہ جانا اور ان کو ریپیئر کرنا پائپوں کو بہت مشکل ہے. تو ہم آتے لوگوں سے پوچھتے ہیں کہ عوام پر کتنا ظلم کر رہی ہے اور کیا ہو رہا ہے آج کل. تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ گیس کی دکانوں کے پاس جو ہے ابھی بھی میرے خیال سے بند کیا ہے. انہوں نے ابھی بند کر دیا ہے میرے خیال سے رش کی وجہ سے. تو لوگوں سے پوچھتے ہیں کہ کیا صورتحال ہے, گیس کی قیمتیں پہلے کتنی تھی ابھی کتنی ہے, رش کیوں لگا ہوا ہے, یہ پوچھتے ہیں بھائی سے. السلام علیکم بھائی جان, کیا حال ہے؟ شکر الحمدللہ. آپ کا نام؟ زین اللہ بھائی. کس لیے آئے ہو ادھر؟ میں 2-3 گھنٹے سے ادھر کھڑا ہوں. بولتا ہے گیس نہیں ہے. ایک تو گیس نہیں, 2-3 گھنٹے ہو گیا. ابھی آگے نمبر آگے کہہ رہے جو گیس ختم ہو گیا. اچھا گیس ہے بہت, ابھی اس نے لایا کہ نہیں ہے. اچھا کہہ رہا ابھی گیس نہیں ہے. نہیں گیس اگر ہے بندے کے پاس تو وہ بیچنے کے لیے آیا ہوا ہے. نہیں وہ بیٹھ کے بولتا ہے ریسٹ کر رہے ہو. ابھی تو اتنے لوگ کھڑے ہوئے 100-200 زیادہ بندے کھڑے ہوئے جا رہے آ رہے لیکن گیس ان لوگوں نے بند کر دیا. اچھا گیس کی قیمتیں پہلے بھی اتنی تھی, کتنی ہے گیس؟ 250-300 چل رہے ہیں. کبھی 300 کرتے ہیں کبھی 250 کرتے ہیں. اچھا اپنی مرضی سے کر رہے ہیں. اچھا ابھی گیس آپ کہہ رہے ہو کہ ہے لیکن یہ لوگ بیچ نہیں رہے. بولتا ہے ریسٹ کر رہا. ابھی اس کو میں بولا بولتا ہے 1-2 گھنٹے بعد آئے گا. ابھی لوگ ادھر میل کھڑے ہوئے ادھر بھی میل کھڑے ہوئے, یہ لوگ گیس نہیں دے رہے. اچھا گھنٹے ہو کے گیس نہیں دے رہے. اچھا تو مجھے تو لگتا ہے جو اگر گیس میرے پاس ہے تو میں اس کو بیچنا ہے, میں نے اپنا فائدہ منافع کمانا ہے. بالکل صحیح بات. یہ لوگ کیوں نہیں کر رہے؟ وہ کہہ رہے جو ہم کو ریسٹ کرنے دو. بولتا ہے ہم لوگ سارا رات نیند نہیں کیا. کیا لگتا ہے لوگ ظلم کر رہے ہیں ایک دوسرے پہ, عوام ظلم کر رہے ہیں 100% ظلم ہے اور کچھ نہیں. 100% ظلم ہے. تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ ابھی تو ہم لوگ کیا کریں, کچھ کر نہیں سکتے ہم لوگ. آپ کو کیا لگتا ہے اس کا حل کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے بس جو ہے نا وہ ہم کیا بتائیں اس کو. انتظار کرے اور انتظار کرے 2-3 گھنٹے اور انتظار کریں گے. پھر ایک گیس دے رہے بس, زیادہ نہیں دے رہے. اچھا 3 گھنٹے 4 گھنٹے کھڑا ہونا پھر 1 کلو گیس دے رہے, زیادہ نہیں دے رہے. 1 کلو سے ایک جو ہے نا ایک وہ بھی نہیں بن سکتا ہے. ایک دن کا بھی وہ گیس نہیں کام نہیں ہوئے گا. صحیح بات ہے. اچھا روٹی وغیرہ کا کیا انتظام ہے؟ روٹی تندوروں میں ملتا ہے نہیں؟ تندور میں جو 50 روپے کا دے رہے ہیں. اچھا مہنگا. ابھی 50 ہو گیا. اور سائز وہی ہے یا سائز تھوڑا بڑا ہو گیا لیکن 50 روپے دے رہے. سائز بھائی کہہ رہے کہ چھوٹا ہو گیا. بھائی اس طرف چھوٹا ہے وہ ہمارے علاقے میں. اچھا وہ دوسرا 25 والا کا کہہ رہا جو ہے نا چھوٹا ہے وہ 25 والا. قیمتیں کیا؟ 25 کا. قیمتیں وہی ہے, سائز چھوٹا کیا. تو جنہوں نے سائز چھوٹا کیا انہوں نے قیمتیں وہی رکھی ہے اور جنہوں نے سائز بڑا کیا اس نے جو ہے نا وہ قیمتیں بھی بڑھا دیا. اچھا ٹھیک ہے اللہ خیر کرے. اوکے اللہ حافظ. تو اسی طرح دیکھتے ہیں آگے. تو جیسے میں کہہ رہا تھا کہ ہر کوئی اپنی استطاعت کے مطابق جتنا بھی ظلم کر سکتا ہے وہ ظلم کر رہا ہے. تو یہ آپ سچویشن دیکھ سکتے ہیں, دکان بند ہے, لیڈیز کھڑی ہے باہر دکانوں کے گیس کے لیے خریدنے کے لیے. اور
तो बहुत ही बुरा हाल है। आप रास्तों में देखिए सैलाबों की वजह से पूरे इलाके डूब गए हैं पानी में। तो ये सिचुएशन है, बहुत मुश्किल सिचुएशन है। भाई लोग आप रश दिखाए। तो गैस की बंदिश की वजह से जो मसाइल लोगों को दरपेश है, एक और भाई हमारे साथ जो गिला कर रहा है, मैंने कहा आप लोगों से बात करा इनकी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम भाई। नाम क्या है सर आपका? नाम मेरा रोशन खान है। अच्छा, क्या मसाइल चल रहे हैं गैस की बंदिश की वजह से? दुकानें बंद है, कुली है, महंगा किया हुआ है लोगों ने या नहीं? सबसे पहले बात तो ये है कि हमारे जो सूबाई हुकूमत है, जिसको मैं नहायत ही नाइल तरीन बोलूँ तो कोई परवाह नहीं। ये एक हफ़्ता हो गया कि गैस के पाइपलाइन पानी में बह गया, मगर ये गैस निकलता ही बलूचिस्तान से। तो ये सबसे पहले कोशिश करते हैं कि ये गैस सबसे पहले पंजाब को मैसर करे। बलूचिस्तान के आवाम की हालत आपके सामने, आपने ख़ुद भी देख लिया कि लोगों की बड़ी बड़ी कतारें दुकानों के सामने लगी हुई है, और ये ईरानी LPG गैस ले रहे, फिर भी इसको सही तरह नहीं मिल रहा है। कल परसों से ये गैस का मसला चल रहा है। हमने बहुत ऐसे दुकानदार देखे जो 450-5 तक किलो बेचते, मगर इसके प्लांट की जो रेट है, जहाँ से ये लोग लाते हैं, इसकी कंपनी बलेली कस्टम में होते हैं, 3-4 प्लांट वहाँ मौजूद होते हैं। आज का रेट तकरीबन 200-195 वहाँ का होगा, मगर ये यहाँ आवाम भी दुकानदार जो से वो आवाम के नाजायज़ फ़ायदा उठाते हैं। इस तकलीफ से 450-500 का किलो बेचते हैं। ये एक सबूत हुई बात है कि नवाकिली, गुलमंडी चौक और बाज़ार के आसपास में 450 का भी हम लोगों ने किलो देखा है कि दुकानदारों ने बेचा। सब ये अभी एक दुकान है जो आपके सामने है, इसमें गैस नहीं, मगर आवाम की बड़ी बड़ी कतारें लग गई है। इन भाई ने भी आपको बोला कि हमारे पास गैस है, मगर 200-300 किलो है। लाजमी बात, ये जो कस्टमर खड़े हैं तो तकरीबन 500-600 के डब्बे इसके हाथ में। तो ये आवाम की जो से काम पूरा नहीं हो गया। इससे हमारे बलूचिस्तान हुकूमत से ये दरख्वास्त है, हम इसे ये अपील करते हैं कि आप लोग जब वोटिंग के वक्त आते हैं तो आप बड़े बड़े बातें करके हम लोगों से वोट लेते हैं, फिर जब काम का वक्त आता है तो आप लोग गायब हो जाते हो। लेकिन आवाम बहुत तकलीफ़ में। हम सूबाई हुकूमत से ये अपील करते हैं और गैस के महकमे से ये अपील करते हैं कि खुदारा गैस का ये पाइप जल्द से जल्द बना ले और आवाम को इस मुश्किल के वक्त से निकाले। बिल्कुल बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है। हम लोग जालिम तो है, हुकूमत तो जालिम पहले से भी था, अभी भी है, लेकिन जो हुकूमत हम लोग अपने ऊपर मुसल्लत करते हैं वो हम लोग खुद करते हैं। ऐसा नहीं है कि आसमान से कोई टपक पड़ा और हम लोगों पे हुकूमत कर लिया। तो ठीक है, आपके और लोगों के जो है मसाइल ऐसा है कि इस दुकान में रेट मुनासिब चल रहा है मेरे ख्याल से। तो इस भाई ने जो अपना रेट बताया 230-250 तक, ये रेट तो मुनासिब है, वहाँ से भी महंगा है, मगर ये ईरान से आता है। नुश्की के रास्ते में भी इसको मुश्किल पड़ सकता है, बड़े बड़े बोझर है, इसके रास्ते के बंदिश की वजह से फिर वहाँ तफ्तान में भी महंगा मिलते हैं। इस दुकानदार का रेट जो हमने देखा ये मुनासिब है। हम खुद इसीलिए आए ना कि दुकानदारों के रेट चेक करें। इस भाई ने जो 250 बताया, 250 इस मुश्किल वक्त में सही है, सही रेट। हाँ। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि पहुँचाना वो गैस आना यहाँ तक पहुँचना इस हालात में कि रास्ते भी बंद है ना, बिल्कुल तो बिल्कुल सही, ये दुकान सही रेट दे रहा है, इसमें कोई शक नहीं है। बिल्कुल। थैंक यू जान, थैंक्स। अच्छा, एक और भाई है हमारे साथ जो नाला है इस हालात से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम भाई। ये मैं सुबह 6 बजे से खड़ा हूँ, गैस नहीं है। कल भी आया हूँ, परसों भी आया हूँ। कभी कहते हैं 500 रुपये किलो दे रहे हैं, कभी अभी 1 किलो डाल के दे रहे हैं। तकरीबन मैं सुबह 6 बजे का खड़ा हूँ इधर, अभी तक मुझे गैस नहीं मिली। अभी 2 घंटे के बाद कहते हैं मिलेगी, अभी फिर मैं भूखा जाऊँगा। तो अभी आप बताएं कि अभी लोगों के साथ क्या किया जाए। तो आपको शिकायत मतलब गवर्नमेंट से शिकायत है ना, गवर्नमेंट वज़ीर आला को चाहिए कि ये इसके ऊपर नोटिस ले और इसको बताए कि यार ये गैस सस्ती करो, गरीब आवाम को रिलीज नहीं दे सकती हो तो फिर इनको छोड़ो, मुल्क को छोड़ो, जाओ दफा हो जाओ बाहर। नहीं तो ये अवाम ने सिलेक्ट किया है ना गरीब आवाम, इस हुकूमत को, तो मैं और आपने सिलेक्ट किया है ना वोट दे के। हम लोग 1000 रुपये में
एक खाने पे हम लोग बिक जाते हैं वोटिंग के दिनों में, आप इसकी गवाह हो, ये बात मानते हो? मैं अल्लाह को गवाह रख के कहता हूँ कि मुझे पूरा कोयटा लिखा के दो, मैं कभी बिकने वाला इंसान नहीं हूँ। आप नहीं हो, लेकिन आप ज्यादातर ऐसे लोगों बिकने को, वाले लोग हैं, ऐसे लोगों को आप जानते हो या नहीं, कि जो 1000 रुपए में, 2000 रुपए में 10,000 में भी बिक जाते हैं, बिक जाते हैं। ठीक है। अब हम बिकने वाली है, हम बिकने वाला नहीं है। हम गरीब ज़रूर है, लेकिन खुदा को मानने वाला है, नबी को मानने वाला है, हम बिकने वाला नहीं है। ये अवाम ज़लील हो या गरीब, यतीम, मुस्किन, ज़लज़ले में आपके सामने सलाम है। तो अभी देखिए, मैं सुबह से कल भी गैस में पीछे आया हूँ, परसों भी आया हूँ, आज भी सुबह 6 बजे का इधर लेन में खड़ा हूँ, लेकिन कोई शय नहीं मिल रही। ना चाय है, ना पानी है, ना रोटी। जब मिलेगी रोटी मुझे 25 का, 20 का, 30 का नान दे रहे हैं। अच्छा, अभी हम तो आपका इंतज़ामिया से गिला है कि ये हमारे मसाइल जो बेसिक मसाइल है, गवर्नमेंट से हमारा गिला है कि इस चीज़ को हल करें, अच्छा, इस चीज़ को हल करे और हमारी चीज़ें मुहैया करें, मुहैया करें, खाने पीने की, गैस, बिजली। अगर अल्लाह की नियामत है तो आप फ़िरौन क्यों बने हुए हो? इनको ये बोलो, इनको ये बोलता हूँ कि फ़िरौन क्यों? अगर अल्लाह रहमत दे रहा है बंदों को, गरीबों को, यतीमों को, अमीरों को, गरीबों को, और वो नियामत छीनना भी जानता है, वो इज़्ज़त देता भी और इज़्ज़त लेना भी जानता है। आप अल्लाह, बिल्कुल, बेशक, इसमें कोई शक नहीं है। शुक्रिया भाई। आपका इंशाल्लाह पैगाम पहुंच जाएगा। ये भाई दूसरे भी इधर खड़े हैं गैस के इंतज़ार में बहुत देर से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। नाम क्या है सर? मोहम्मद मुतहिर। अच्छा, किस लिए आए हो इधर? भाईजान गैस के लिए आए हैं, गैस नहीं है। कल भी आए थे, परसों भी आए थे, कभी सर्कुलर रोड जाते हैं, कभी किधर जाते हैं, गैस नहीं मिलता है। जब वक्त आता है वक्त पे पहुंच जाते हैं, बस कहता है गैस ख़त्म हो गया, क्या ख़त्म हो गया, बस ये ड्रामे चलते रहते हैं हमारे। तो ख़त्म हो गया होगा तो इन्होंने बंद किया, वो पैसे नहीं, लेके देते? बस बंद कर देते हैं रश, फिर खुला देते हैं। जब हम जाते हैं, कोई और गरीब भी है इधर, कोई और भी होते हैं, यतीम भी है, फिर बस ये इनका रिवाज है, बस ख़त्म कर देते हैं। ये हमारे, बस हम आ जाते हैं, ख़त्म कर देते हैं। अच्छा, तो कि कौन कर सकता है इस मसले को, कौन हल कर सकता है? मैं तो दुकान नहीं तोड़ सकते हम लोग इसकी, तो कौन कर सकता है? किससे गिला है? इंतज़ामिया से। इंतज़ामिया इन पे प्रेशर डाले और उनको हाँ, बोले कि इनको अपनी बोले कि दुकानें- अपने दुकानें सुबह खोले, शाम को बंद करें। इन गरीब गैस नहीं है, इनका हल निकाले। ये दुकान वाले हैं, हम और कहाँ जाए, आसमान पे जाएं? अच्छा, ये मालिक, एक सेकेंड, मालिक से कोशिश करते हैं बात करने की, अगर मालिक के पास टाइम हो थोड़ा सा रास्ता। फर्स्ट क्लास। मालिक कौन है इसका? मालिक तो नहीं है, मैं कौन बेच रहा है? अभी बेच रहे बेटा। अस्सलाम वालेकुम। नाम क्या है सर आपका? जुमा खान। जुमा खान साहब, आप दुकान के मालिक हो या बेच रहे हो क्या? मैं बेच रहा हूँ सर, गैस बेच रहा हूँ। क्यों अभी बंद क्यों होता है दुकान? बंद आपके सामने, दुकान में गैस नहीं है, एक सिलेंडर भी अभी लाया, आपके सामने गाड़ी आ रही है, जो गाड़ी पहुँच गया, मैं सब लेन पे खड़े, सबको देर हो गई। अच्छा, हाँ, कब से खुला है ये भी? एक बोलो मिनट। ना, दुकान कब से खुला है? परसों 6 बजे से 2 दिन 24 घंटे सर्विस है हम लोगों का। बाकी नीचे 3 दुकान है, वो बंद है, अभी भी बंद है। गैस उसके पास पड़ा हुआ है, बंद है। हमारे तुम्हारे सामने अभी गाड़ी आ रही है, देख लो, सबको गैस मिलेगा। नहीं, इसकी वजह क्या है? एक बंदे के पास गैस मौजूद है, वो बंद क्यों करे? कराची का रास्ते बंद है, गैस पीछे से नहीं आ रहा है। नहीं, आप जो कह रहे हैं नीचे वाली दुकानें उनके पास गैस है लेकिन बंद है, वजह क्या है, क्यों बंद करते हैं? वो लोग रशकश बनाता है, वो जंजाल करे, इसी की वजह से नहीं बना रहे। अच्छा, क्या किलो बेच रहे हैं आप? मेरे दुकान में गैस है, गैस नहीं है, लोग फिर भी शोर करते हैं, बोलते हैं वीडियो बना रहे कि ये हो गया, ये हो गया। ठीक है, सही। हम लोग 230 रुपया किलो दे रहे हैं। अच्छा, 250 भाई लोग कह रहे भाई हैं। लोग तुम तराजू में देख लो, भाई को नहीं बता दो ना। इसी तरह कल एक बंदे ने थाने में रिपोर्ट किया कि 400 बेच रहे हैं। हाँ। तुम अपना प्रूफ लाओ हमको, ठीक है। एक प्रूफ लाओ, मैं आपको बता रहा हूँ कि कितना नहीं, ये तो आप बात मानो कि यार अवाम एक दूसरे पे जुल्म करती रहती है और होलसेल करते के रहते। हिसाब से 230 है और परचून के हिसाब से 250 है। ठीक हो गया। ठीक है, 240, हाँ। अच्छा, आपसे एक रिक्वेस्ट ये है कि ये लेडीज जो खड़ी है, पहले इनको फारिग किया जाए। फिर बिल्कुल, तो गैस ये आ जो गया, इसकी खिदमत में 24 घंटे सर्विस है, 24 घंटे सर्विस। ये आया, देखो अभी सिलेंडर आया। तो बेसिकली यहाँ पे आने का मकसद ये था कि आप लोगों को, व्यूवर्स को दिखाए कि क्या सिचुएशन चल रही है और क्यों लोग इतने परेशान हैं और अपने घरों में गैस ना होने की वजह से। गैस तो एक लाजिम चीज़ है, एक एसेंशियल चीज़ है हर घर में। तो
خوراک کے لیے کھانے کے لیے چیزیں بنانا لیڈیز کے لیے بہت مشکلات کا سامنا ہو رہا ہے ان کو. تو آگے بھی آپ کو دکھائیں گے کہ کیا کیا مسائل ہے, کس کس دکانوں میں کہاں پہ لوگوں نے ابھی لوگوں کی چھتیں جو کچی تھی ان کے جو چھت ٹپکنے لگے تو اس کی وجہ سے پلاسٹک وغیرہ ان کو چاہیے ہوتا ہے. تو وہ پلاسٹک پہلے اگر 20 روپے میں مل رہا تھا, میں مثال دے رہا ہوں, ابھی وہ 40 میں بھی نہیں دے رہے لوگ. اس طرح اناج کا آپ دیکھ لیں, لوگ ابھی شاید میرے خیال سے ذخیرہ کرنا شروع کر دے کہ بھائی اپنی دکانوں میں بیچیں گے, 1 ہفتے 10 دن بعد تھوڑی سی کمی ہو جائے اس کو دگنے داموں بیچیں گے. تو یہ ظلم چل رہا ہے ہمارے ایک دوسرے پہ. میں بھی جو میرے ہاتھ میں شاید لوگوں پہ ظلم کروں, جو کسی اور بھائی کے ہاتھ میں ہے, تو سب ایک دوسرے پہ ظلم کر رہے ہیں. حکومت ہم ساروں پہ ظلم کر رہی ہے اور ہم ایک دوسرے پہ ظلم کر رہے ہیں. تو اس طرح فی الحال یہاں سے آپ سے اجازت چاہتے ہیں. انشاءاللہ آگے بہت ساری جگہ ہے جہاں ہم آپ کو لے کے چلیں گے اور آپ کو حالات کے مطابق وہاں کا جائزہ دیں گے. تھینک یو. فی الحال اللہ حافظ, خوش رہیں.